Welcome to all under the course Fundamental of Behavioral and Social Science Research, Module 3, Type of Research. Lecture title is Longitudinal and Cross-Sectional Research. In this course, you will be capable to understand the concept longitudinal research and cross-sectional research and how to use, where to use. You will be able to understand the concept of this. What is the concept of longitudinal research? Research is a journey, and in that we go with the various type of researches. Here, longitudinal research is a repeated observational study where the same subjects are studied over an extended period, weeks, months, year, or even decades. So here generally we proceed for the longitudinal research in the repeated observational study, and within the social science researches we proceed with the years or decades. This design helps in examining changes and developments over time. एक लंबे समय के लिए जो रिसर्च किया जाता है और एक ही विषय वस्तु या व्यक्ति या समूह पर, वह रिसर्च जो है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहलाता है. Here example is considered as a cohort study tracking the academic achievement of students from elementary school to college. From the elementary schools, where a child get the entry in the elementary classes, like from class 1 to college, it means graduation or post graduation. This is the a time interval which cover the more than 10 years. It means it can consider the decades also. And Jean Piaget theory, cognitive development, is also based on the longitudinal research. So longitudinal research involves repeated observation of the same variables or objects over an extended period. It is commonly used in social sciences, psychology, education, and medical research to study changes and developments over time. So this is considered as a longitudinal research where we take more time on a same subject or same objects. Types of longitudinal research: panel study. A panel study tracks the same set of individuals that can be considered as a panel over multiple time points to examine changes at an individual level. एक जो सेम सेट ऑफ पैनल है उसको हम मल्टीपल टाइम में कह सकते हैं कि उसकी स्टडी करते हैं. दैट इज कंसिडर अंडर द पैनल स्टडी. अ स्टडी फॉलोइंग टीचर्स जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल ओवर 10 ईयर्स. तो जो टीचर्स होंगे सेम होंगे, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा है 10 ईयर्स के ड्यूरिंग हम देख सकते हैं. कोहर्ट स्टडी. अ कोहर्ट स्टडी follows a group of individuals who share a common characteristics such as birth year or graduation year to study how experiences affect outcomes over time. So it can be also considered as a longitudinal study where same year जो birth है या जो graduation का completion का year है, उस जगह से हम उन लोगों को consider कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं कि how they are doing to study how experiences affect outcome over time. A study tracking students from the 2010 batch to analyze their career progression. जिन्होंने 2010 में पास किया था और उनको हम ट्रैक करके देख सकते हैं कि उनका कैरियर का प्रोग्रेस कैसा रहा. तो दिस कैन बी कंसिडर अंडर द longitudinal research. Trend study. Instead of tracking the same individuals, ट्रेंड स्टडी एग्जामिन्स. यहाँ पे हम सेम इंडिविजुअल्स को ट्रैक नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं. एग्जामिन्स हाउ अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस विद इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम. एनुअल सर्वे मेजरिंग पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड क्लाइमेट चेंज ओवर अ डिकेड. यहाँ पे हम लोगों की ओपिनियन देख सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे ओवर अ टाइम. तो ओवर अ डिकेड वी हैव कंसिडर्ड हियर एनुअल सर्वेज measuring public attitude toward climate change
over decade. So this is based on the time, and this can be considered under the longitudinal research. Cross-sectional research. Cross-sectional research involves observing different subjects at a single point in time to examine relationship and pattern between variables without tracking changes over time. Here, cross-sectional can be considered as a observing different subjects at a single point in time. एक ही समय में कई चीजों को देखना, या कह सकते हैं कि गहराई से एक जगह पे देखना, to examine relationship and patterns between variables without tracking changes over time. इसमें टाइम जो कंज्यूम बहुत ज़्यादा हम नहीं करते हैं, तो इसलिए एक ही समय पर हम कई चीज़ों को भी देख सकते हैं या एक बिंदु को गहराई से देख सकते हैं. Example, a survey on social media uses among different age groups to assess generational differences in digital literacy. ये इस तरीके से हम कर सकते हैं कि देखें कि एक जो सोशल मीडिया यूजेज है among different age groups to assess generational differences in digital literacy. जो डिजिटल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है. तो दिस कैन बी जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक ही नहीं होगा, डिफरेंट एज ग्रुप्स लोग होंगे और बहुत ज़्यादा समय हम नहीं इसमें कंसीडर करने जा रहे हैं. तो देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर एज ए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम दोनों की देखें तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का जो टाइम फ्रेम है ओवर ए लॉन्ग पीरियड, इसमें समय ज़्यादा लगता है, सिंगल पॉइंट इन अ टाइम. पार्टिसिपेंट्स जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के हैं वो सेम इंडिविजुअल्स रिपीटेडली होते हैं. इसमें हम सेम इंडिविजुअल्स पे नहीं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर ग्रुप जैसा भी हम डिसाइड कर रखे हैं. पर्पज जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का है, ट्रैक चेंजेस, काज इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में कंपेयर ग्रुप्स, एग्जामिन कोरिलेशंस. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में जो डाटा कलेक्शन है वो मल्टीपल वेज ऑफ डेटा हमें मिल जाते हैं. एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में वन टाइम डेटा कलेक्शन है हमारा. फिर फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में लेस फ्लेक्सिबल है, क्रॉस सेक्शनल में मोर फ्लेक्सिबल. कास्ट एंड एफर्ट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हाई होता है, हाउएवर इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में लोअर. एग्जाम्पल चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम नेशनल हेल्थ सर्वे को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं. तो दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स which are explore about longitudinal and cross sectional research. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के रूप अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की, तो एडवांटेज में देख सकते हैं कि इट ट्रैक्स डेवलपमेंट एंड चेंजेस ओवर टाइम, बट इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. एडवांटेज में आइडेंटिफाइज कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स and controls for individual differences since the same participants are studied. Disadvantage में हम बात करें तो risk of participant attrition, dropouts, reduced sample size. कभी कभी वो लोग हट जाते हैं, हमारे कवरेज में नहीं रहते, हमसे कनेक्शन में नहीं रहते, then that time it may be problematic. And data collection errors may accumulate over time. क्रॉस सेक्शनल की अगर बात करें इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, तो क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, लार्ज सैंपल साइज कैन बी एनालाइज्ड, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स एट ए गिवन मोमेंट. इसका जो डिसएडवांटेज है उस पर हम आके बात करें तो कैन नॉट एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, वल्नरेबल टू कोहेरेंट इफेक्ट्स, डिफरेंसेस ड्यू टू जनरेशनल वेरिएशंस, एंड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल चेंजेस ओवर टाइम. तो एक ही जनरल व्यू देता है जिससे कि बहुत कह सकते हैं कि एक ऐसी रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन दीज आर हेल्पफुल इन द मेजरली इन सर्वे रिसर्च एज वी हैव रिटन, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स एट अ गिवन मोमेंट, बट बोथ आर नीडेड एंड बोथ टाइप रिसर्च आर हेल्पफुल फॉर द पॉलिसी डेवलपमेंट. एप्लीकेशन इन बिहेवियरल एंड सोशल साइंस, लॉन्गिट्यूडनल को कैसे हम यूज में ला सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल को. तो एजुकेशनल रिसर्च ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज, अगर हमें जैसे देखना है तो हम लर्निंग जो डिसेबल बच्चे हैं उनके सेटअप को देखकर कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं कि व्हाट
will be better for them. And cross-sectional market research on consumer preferences, ये तुरंत मिल जाएगा कि कंज्यूमर किस तरीके की चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल में कंसीडर किया जा सकता है. Like that, longitudinal psychological studies on childhood trauma and adult mental health, ये एक लंबा प्रक्रिया में जाकर करने वाला काम है. लाइक सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन इकोनॉमिक मोबिलिटी अक्रॉस जनरेशन. तो जनरेशन की बात हो रही, इट मीन्स इट रिक्वायर्ड मोर टाइम. क्रॉस सेक्शनल में एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ऑन डिजीज प्रिवलेंस, ये तुरंत हो जाएगा काम. पब्लिक पॉलिसी सर्वेज ऑन वोटिंग बिहेवियर, तो ये भी विद इन few days, few months हम इसको कवर कर सकते हैं. तो that will be considered as a cross sectional research. अगर आपको अच्छी समझ अपनी इनके विषय में बनानी है तो हमें जाना होगा, सोचना होगा, how might the choices of research design influence the conclusion drawn in a study, what are some ethical consideration researcher should keep in mind in long term studies. अगर इन चीज़ों को सोचते हैं आप, जब सोचेंगे तो शायद आप कुछ स्टडीज को कवर करके कुछ रेफरेंसेस देखेंगे और अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अबाउट बना सकेंगे. ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर दिस लेक्चर, लिसनिंग पेशेंसली, एंड वी विल meet in next lecture. Thank you.